Alaikum and very good morning, my students. You remember when we discuss how to go ahead in the online mode and how you can take maximum benefit out of the class. So broadly, by and large, you have suggested 3 points. So all these students here, they came up with the 3 broad points. One, somebody who was aware that I stream my video lectures also through my YouTube channel. So somebody has suggested for that. Then notes. Then third point, that when the talk is going on, when the lecture is being shot, it should be in both the language, bilingual, means English as well as Urdu. So my dear students, I will take care of all these 3 points, and I have started. It is just the beginning. Today my lecture will be on subject cataloging. Initial part of it will be in English, followed by in Urdu. Then I will also try to send some notes pertaining to the topic, which will be sent through WhatsApp. You remember you have already created a separate group for BLS 7003 for me, so that will also be done. So as far as subject cataloging is concerned, I would in the beginning itself I would like to tell you that it is different from bibliography. Bibliography is a list of books or other materials. So you know, in bibliography the material which is included may or may not be in a particular library. Means say for instance a book is present in Maulana Azad library, some books are present in Maulana Azad library, some in Jamia Millia, some in Jamia Hamdard, some in DU, BHU, or even any library of the world, library of Congress, Lenin library, British library, that all could be included in bibliography. However, subject cataloging, this catalog is different. Catalog, first of all, I am going to tell you what is the difference between bibliography and catalog. Catalog is usually prepared for a given library. On a, see, it is prepared author wise, title wise, subject wise, series wise, classified catalog, but the material is available on a particular library for which the catalog is prepared. Now this is the broad differentiation between bibliography and catalog. See, now subject cataloging. What is subject cataloging? Day by day we are coming across many subjects. Some subjects which are nowadays available, these were not present, people were not aware about these subjects. Artificial intelligence, nobody knew it. Information technology, even prior to, you won't believe that in a survey being conducted in London way back in 1981, 80% population was not knowing what is information technology. Now everybody is aware of information technology. So with the passage of time, there is a proliferation of subject. It is particularly it is needed in an academic library, where people nowadays are looking through subject. They search their material through their subject. So that's why subject cataloging is needed. Catalogs are prepared by the subject. ये एक बात हम आपसे बताना चाह रहे हैं. पहली बात तो हमने आपको ये बताई कि बिब्लियोग्राफी जो है, दुनिया की किसी लाइब्रेरी की कोई चीज़ आपने प्रिपेयर किया, बिब्लियोग्राफी के अंदर डाल सकते हैं. वो किताब जो है, अगर फ़र्ज़ कीजिए मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में हमारे यहाँ है, या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में है, या चाइना की नेशनल लाइब्रेरी, इसकी नेशनल लाइब्रेरी में, किसी भी लाइब्रेरी के अंदर है, वो बिब्लियोग्राफी के में कोई ये शर्त नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी में है. दिस इज़ बेसिकली अ लिस्ट ऑफ बुक्स. बस ये है, ये नहीं है कि लिस्ट ऑफ बुक इन अ गिवन लाइब्रेरी, ऐसा नहीं है.
तो वो आप उसको बिब्लियोग्राफी बना सकते हैं। अब कैटलॉग में ये ज़रूरी है साहब, कैटलॉग में ये ज़रूरी है कि कैटलॉग कार्ड्स जब बनते हैं तो वो उसी लाइब्रेरी के बनते हैं जहाँ रखे जाते हैं। पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं, अभी भी 90% से ज़्यादा लाइब्रेरी के में कैटलॉग कार्ड्स ही तैयार किए जाते हैं। और ये जो आप जब जाएंगे लाइब्रेरी में, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ऑटोमेटेड लाइब्रेरी में आप जाएं, तो आपको भी ये चीज़ जाननी पड़ेगी। इस वजह से ये टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। वी हैव मोर ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज़ इन कंपैरिजन टू ऑटोमेटेड लाइब्रेरीज़। तो हम बता रहे थे आपको कि कैटलॉग में क्या है, कैटलॉग जो तैयार किए जाते हैं वो उसी लाइब्रेरी का जो मटेरियल होता है, अवेलेबल जो किताबें होती हैं और मटेरियल होता है, उसकी बनाए जाते हैं। तो ये अब बात चलेगी आगे सब्जेक्ट कैटलॉगिंग के ऊपर। देखिए, पहले ज़माने के अंदर क्या होता था, थोड़ी थोड़ी किताबें होती थीं, उसके अंदर चंद सब्जेक्ट्स होते थे। आपको मैं बताऊं, किसी ज़माने में सिर्फ 3 या 4 सब्जेक्ट थे। रिलीजन के ऊपर किताबें तैयार होती थीं, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर तैयार होती थीं, इसी तरह से एक दो और जो है वो माइथोलॉजी वगैरह के ऊपर तैयार होती थीं, किताबें लिखी जाती थीं। अब आप सोचिए, सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों सब्जेक्ट्स हैं। अब वो उसमें क्या है, बल्कि आपको इससे आगे की चीज़ बताएं, सब्जेक्ट के बाद भी और कीवर्ड्स अब तो शुरू हो गए। तो सब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर जो है ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। रिसर्चर वरना लॉस्ट हो जाएगा वो कलेक्शन के अंदर। 1 मिलियन की कलेक्शन है और आपने जो है वो सब्जेक्ट कैटलॉग नहीं बनाया। हम फ़र्ज़ कीजिए जो है ज़ूलॉजी के हैं, ज़ूलॉजी बैकग्राउंड के हैं, सपोज़ अब हम तलाश कर रहे हैं किताब को जो है वो हम एनाटमी में या फिजियोलॉजी के अंदर, और वो ज़ूलॉजी खाली से काम नहीं चलेगा, या उससे भी ऊपर पहले ज़माने के अंदर जैसे होता था बायोलॉजी और उससे पहले साइंस, यानी अब तो वो आगे 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 चीज़ें स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रही। इस वजह से सब्जेक्ट कैटलॉगिंग की ज़रूरत पड़ी। बहुत सारे सब्जेक्ट डेवलप हुए। पहले ज़माने में मैं आपको बताऊं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लोग नहीं जानते थे। अब उसमें देख लीजिए आप, उसमें कितनी चीज़ें आ गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, हार्डवेयर आ गए, सॉफ्टवेयर आ गए। और उसमें भी आप देख लीजिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सी के ऊपर किताबें, विजुअल बेसिक के ऊपर किताबें, C++ के ऊपर किताबें, फोर्ट्रान के ऊपर किताबें, और ना जाने कितनी किताबें कितने सब्जेक्ट्स के ऊपर। इस वजह से सब्जेक्ट कैटलॉगिंग की ज़रूरत है, ये याद रखिएगा। ये कंसेप्ट है, यानी ये कंसेप्ट है कि धीरे धीरे जो है रिसर्चेस हुई और रिसर्चर्स से नए नए सब्जेक्ट आए। अब जब नए सब्जेक्ट आए उनके ऊपर किताबें तैयार हुई। अब किताबें तैयार हुई, किताबें पढ़ने के लिए बनाई जाती हैं। अब किताबें लाइब्रेरी के अंदर आई, अगर आपने उनकी सब्जेक्ट कैटलॉगिंग नहीं की है, सब्जेक्ट के कैटलॉग नहीं बनाए हैं, तो वो इट इज़ एज गुड एज लॉस्ट, यू हैव नॉट प्रोक्योर्ड इन द लाइब्रेरी। इस वजह से सब्जेक्ट की कैटलॉगिंग की ज़रूरत है। ये हमारा जो है इनिशियल लेक्चर है, ये कंसेप्ट एक हमने आपको जो है शुरू बताया है सब्जेक्ट कैटलॉगिंग का। ये अगर आपको पसंद आए तो हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है हमारे जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए दूसरे लोगों को, और ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं। और अपने कमेंट्स भी दीजिए। हमारी अगर आवाज़ आपकी जो है वो समझ में नहीं आ रही है, हम जल्दी बोल रहे हैं, या कोई और सजेशन है इम्प्रूवमेंट का, तो वो दीजिए। तो ये गोया कि आप पहला लेक्चर है, और कल हमारी क्लास है। उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर जो है आपको आई विल ट्राई टू सेंड सम मटेरियल ऑल्सो ऑन द सब्जेक्ट कैटलॉगिंग, so you will feel those notes are very relevant and very useful for you. Thank you so much, and meet you tomorrow inshallah. Khuda Hafiz.